Hello, hi, welcome, namaste. As you all know that I have started my podcast talk show in Joyful Journey, Your Path to Happiness. So today I have an esteemed guest with me, Mr. Abhishek Aneja ji. Thank you so much, Abhishek ji, for coming and accepting this invite. Thank you, Preeti ji, for inviting me to your show. And yes, this inspiration also I got from you how to start and take this journey forward of the podcast show. Thank you for that too. Congratulations and all the best for your journey as a podcaster and impacting millions of lives. Thank you. Thank you so much for this lesson. Now, as we move forward, let me introduce him. Mr. Abhishek Aneja ji is a distinguished financial expert, chartered accountant, and author of the acclaimed book Navigate Finance Wellness, with qualifications including CA, CWAR, and LLB. He brings a wealth of expertise to the financial world. He has also written for the Money Control and been featured in Hindustan Times, Economic Times, BizBuzz News, Bills News, Money 9, and many more. A thoughtful leader in personal finance, Abhishek ji is a committed to empowering individuals with informal financial decisions. His leadership extends to the Rotary, where he drives impactful community initiatives. Thank you so much, Abhishek ji. You have such a great profile, and it's my honor to invite you. It's Thank you, really Preeti an ji, honor. and it is a pleasure to be on your podcast. And uh, hello all to all the audience of this podcast. And I'm sure that this is going to create a big impact on millions of lives. uh, Whatever we do, whatever Preeti ji is doing, the kind of work Preeti ji is doing is simply amazing. It's simply awesome, and I have become a big fan of Preeti ji now. Oh my God. Oh my God. Thank you so much. Those were these golden words. Rather, right. So these are the golden words for me. Now, as I have introduced Abhishek ji ka, as an author, and he has written the book. So our topic is also navigate financial wellness. So we are going to discuss about such financial things with him. And my first question to you, Abhishek ji, is what does financial wellness mean, and why is it essential to have this for the overall well-being? So हमारी Yes, overall well-being के लिए क्या जरूरी है? What is the हाँ most जी, important thing is how we what are our habits and how do we behave with particular things. So अभी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जैसे हेल्थ के से रिलेटेड वी टॉक अबाउट वेलनेस, वी टॉक अबाउट मेंटल वेलनेस एंड different things related to wellness. So financial wellness is also very important to know, to understand, to learn, and to amend our habits and behavior towards the money. Let me take an example. Uh, आपने आप whatever you do, you go to a market. How do you shop in the market? How do you spend in the whenever you have to buy a particular thing? Do you compare the prices or you go with the offers? You do an impulse buying just looking at the offers. So ये सारी चीजें हमारी financial wellness को impact करती हैं. Moreover, I'll say that we are product of our decisions. Our decisions can change our destination. okay. So whatever decisions that we take impact our say, present as well as future. So you may have taken certain decisions in say 10 years back, 20 years back. How are they impacting you financially now? So if we are aware about our decisions and we take those decisions with mindfulness, with consciousness, by being fully aware about what we are doing, and by understanding the consequence that we may have to face in future because of those decisions. तो वो डिसीजंस का आज हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको अगर हम समझ जाएं तो हमारी फाइनेंशियल वेलनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है. लेट मी टेक एन एग्जांपल. सो आई विल टेक यू बैक 10 years नाउ. Okay, आप 10 साल पहले के प्रीति बन जाइए एंड done. आप सोचिए
आपके पास से सिर्फ 10,000 रुपये हर महीने का आपका कैश फ्लो, आपकी कोई प्रमोशन हुई एंड यू आर हैविंग 10,000 रुपीज एज एन एडिशनल अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। नाउ Okay. व्हाट यू कुड डू विद दिस अमाउंट, आप इसको अपना, आपने यू माइट हैव टेकन अ कार, यू माइट हैव अपग्रेडेड अ कार विदाउट एनी नीड, सो या आपने कुछ घर के ऊपर कुछ एडिशनल खर्चा करना शुरू कर दिया, या आपने कहा कि ये नहीं अब मैं ड्राइवर रख लेती हूँ, आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपने रख लिया, ठीक है। तो आपके पैसे 10 साल में आज आपके अकाउंट में उस जो 10,000 रुपये आ रहे थे उसमें से कितने पैसे बचे हों? जीरो, क्योंकि आपने हर महीने वो खर्चते गए। Right, नाउ right. if you had say invested that money, let us take a very simple example, आपने किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया, से म्यूचुअल फंड्स, और उस पे आपको 12% का उस पे रिटर्न आया, तो Right, वो पैसा 10 साल में अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में हो जाता से 23-24 लाख के अराउंड, right, ठीक है। और यही अगर आप 10 साल और कंटिन्यू कर लेंगे तो वही पैसा आपके लिए 1 करोड़ के अराउंड। right. So this is how Indeed. simple things affect our financial wealth, financial health in a long term. Okay. वंडरफुली एक्सप्लेन, वंडरफुली एक्सप्लेन। मीन्स अगर हमारे पास कोई जो भी मतलब इनकम आ रही है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फाइनेंशियली वेलनेस। और उस चीज के लिए सिर्फ वी नीड इन्वेस्ट टू बी। करना नहीं, फाइनेंशियल वेलनेस का बेसिक, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइनेंशियल वेलनेस आपकी इफेक्ट होगी आपके हर एक तरह के डिसीजन, जो कि आपको फाइनेंशियली सिर्फ इनकम में इफेक्ट कर सकते हैं, आपको सेविंग्स में इफेक्ट कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने से आपने हाउ आर यू यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, आर यू जस्ट गोइंग बाय लुकिंग एट सर्टेन शॉर्ट्स कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही खर्चा करो और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये चीज भी आपको फाइनेंशियली ऊपर लेके जा सकती है, या फाइनेंशियली नीचे आपको लेके जाते हैं। एक ट्रैप में लेके जा सकती है, राइट, ठीक है। राइट, राइट। देन डू यू हैव अ प्रोटेक्शन प्लान फॉर योर किड्स, आपने उसके लिए कुछ सोचा, आपने विल बनाई नहीं बनाई, आपने कोई फाइनेंशियल, आपने कोई फैमिली ट्रस्ट बनाया नहीं बनाया, ये सारी चीजें भी फाइनेंशियल वेलनेस का एक पार्ट है। सो एवरी डिसीजन दैट वी आर टेकिंग राइट। impacts us financially in one way or the other, यस। so we have दिस to इज look वेरी, at those issues. दिस इज वेरी And क्रूशियल थिंग यू हैव शेयर्ड। यस, प्लीज, प्लीज, प्लीज। यू आर सेइंग समथिंग, मैंने बीच में वो। नहीं नहीं I have completed, you can move on with the Okay. So this was something crucial which you have shared about this. And in continuation to this only, please let me know कि what are the key steps to create such strong financial foundation. मतलब ऐसी so कौन सी चीजों foundation पे हम ध्यान रखनी चाहिए? so foundation के लिए बहुत जरूरी है कि we put the right seed in the soil. Yes, Am I correct? We have to right, put the right, right right. seed in the soil. या अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग की भी फाउंडेशन होती है, so we बिल्कुल। put use the right material when we are creating a building, ठीक है ना। तो उसके लिए बिल्डिंग Absolutely, बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो we need a plan, absolutely. ठीक है Right. ना। We need to understand the location of the property, कि वो प्रॉपर्टी Yes, कहाँ पे है, उसके आगे yes, क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, नियर क्या है, दूर क्या है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। सिंपली हमारे फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए हमें पता होना चाहिए हम कहाँ हैं, व्हाट आर आवर एसेट्स, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। हमारे कैश फ्लो क्या, हमारी इनकम क्या है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी इनकम क्या है, वो इनकम से एक्सीड कर जाते हैं hmm. स्पेंडिंग में, ठीक Right, है। right, right. और समटाइम्स दे टेक ह्यूज रिस्क इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स that they should not take. So that is also something that is very crucial to your financial foundation. Right. Then you, as I said, कि financial wellness के लिए आपके पास एक will होना चाहिए, आपके पास emergency fund होना चाहिए, आपके पास आपके पास proper coverage होना चाहिए insurance का. So these are all things that go into your financial foundation. Okay. Right, right. मीन्स दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर दिस कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है और कितनी आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, वो सारा आपके चीजें एकदम फाइनेंशियल गोल प्लान क्या आउट। है उसके हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। राइट, राइट, राइट। अब इस चीज के लिए मैं आपसे और हेल्प लूंगी कि आप जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसी फाउंडेशन, इस टाइप की फाउंडेशन के लिए वी नीड टू हैव सम स्ट्रैटेजी। तो कैन यू शेयर समथिंग फॉर द बिगिनर्स जो अभी मतलब नया नया ही उन्होंने अभी फाइनेंशियली कमाना भी शुरू किया, समथिंग फॉर द बिगिनर्स विच इज फ्रेंडली इन
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू ग्रो देयर वेल्थ, मतलब कैसे ये लोग अपना आपको ग्रो कर सकते हो? आपका जो चैनल आपका सॉरी जो चैनल है वो पेरेंटिंग पे है। जी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप बच्चों को आपके बच्चों को अपनी मासी से बुआ से कभी कभार सेकंड मिल जाता है 1100 रुपये का। ठीक है। तो हर महीने अगर 1100 रुपये आ रहे हैं बच्चे के पास और आप उसको उसके ब्याह पे इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है ना, उसके बेनिफिट के लिए। तो अगर आप वही सिर्फ 1100 रुपये ही इन्वेस्ट करोगे महीने में, ठीक है, और आपने उसको से 31 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर दिया, तो ओके। आपके बच्चे के फंड के लिए आपके पास अराउंड 44 लाख रुपीज इकट्ठे हो जाएंगे। ओह, वाओ, सिंपल दैट्स एक क्या कहते हैं, दिस इज ऑल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। तो अगर हम्म। दैट इफ दैट फंड जनरेट्स एन से कंसिस्टेंट रिटर्न ऑफ अराउंड 12%, तो आपके 44 लाख रुपीज हो जाएंगे। और अब आपने क्या किया, आपने कहा कि चलो कि बच्चे के पास तो आ रहे हैं, मैं इसमें हर महीने ना 10% बढ़ाता जाऊं, हर साल हम्म। स्टेप अप कर, हर साल 10% बढ़ा। जैसे कि पहले साल 1100 रुपये जमा करा, अब आपने उसमें 1100 में हर नेक्स्ट ईयर में 10% ऐड कर दिया। ओके। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में जो अमाउंट था 1100 प्लस 10%, उसका भी 10% आपने और अपनी साइड से डाल दिया। आप भी तो कुछ दोगे। राइट। ठीक है। तो राइट। यही 31 ईयर्स में सेम टाइम फ्रेम में वो जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा अराउंड से 31 ईयर्स में ओवर 1 करोड़। ओके, जस्ट अ सिंपल स्ट्रैटेजी यू हैव शेयर्ड, और उसमें भी इतना मतलब बड़ा मैजिक आपने क्रिएट करके बता दिया है कि हाँ, इतना इन्वेस्टमेंट करो तो आपको इतना अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। दैट्स वंडरफुल। तो वंडरफुल, मतलब see all अभी। these we have all these if you understand all these tools you can say create a good foundation for your children. राइट, 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 एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द थिंग विच पेरेंट्स नीड्स टू नो, कि हाँ, अगर आप चाहे बिगिनर्स जी की, जैसे हम लोगों ने बात करी है कि जो लोग अभी मतलब स्टार्टिंग की, उनकी सैलरी भी कम हो या कुछ भी हो, बट आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा बच्चे के प्राइस के लिए या बच्चे के गिफ्ट के लिए कुछ मिल रहा है, या स्कूल से कैश प्राइज मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आप उस चीज को आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करोगे, दैट विल गिव गुड रिटर्न्स रादर देन स्पेंडिंग देम ऑन अदर एक्सेसरीज। Wonderful strategy. I'm going to do this. I'm definitely going to do this. Now, the next question is, how can the mindset and behavior impact the financial decision making? Because it's all about mindset. अगर हमारा माइंडसेट होगा उसमें जाने के लिए, तब तो हम आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे या कुछ। तो वो क्या रोल प्ले करता है? माइंडसेट पे जैसे हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं हियरिंग टॉर्टोइस की। तो हम्म। हियर क्या होता है, ही हैज द एबिलिटी बट ही टेक्स अ डिसीजन, वो सो जाता है बीच में, है ना। राइट। और टॉर्टोइस होता है, उसको पास क्या होता है, उसके पास वैसे स्लो होता है लेकिन उसके पास कंसिस्टेंसी होती है, तो वो रेस में जीत जाता है। राइट। तो अब हमारे पास इससे एक तो ये हो गया कि एक तो ये लेसन मिलता है टू बी कंसिस्टेंट हम्म। अपने गोल्स की तरफ। ठीक है। और दूसरा, हमें एक अगर हम इसको फाइनेंसिस के साथ थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें, और हम ये मान लें कि आपके जो हेयर है, हेयर रिप्रेजेंट योर एक्सपेंसेस, हम्म। और टोटोइज आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बढ़ती हैं। हमारे एक्सपेंसेस यूजुअली हमारे सेविंग्स से ज्यादा ही होते हैं। राइट। तो हमारे एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं ब्रेक लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसको रुकना भी चाहिए। अगर हमारे एक्सपेंसेस भागते ही रहेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, एंड टॉर्टोइस कभी जीत नहीं पाएगा। और लेकिन अगर हम उसको ब्रेक दे देंगे, टॉर्टोइस को थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे, कंसिस्टेंटली सेविंग करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो एक दिन हम रेस जीत जाएंगे। वाओ, लवली, व्हाट अ ग्रेट एग्जांपल यू हैव गिवन। और कोई सोच भी नहीं सकता कि आप एक नॉर्मल सी स्टोरी, एक जो मतलब कॉमन स्टोरी है, उठते कि उस स्टोरी के थ्रू आप कितने अच्छे से इस चीज को, प्लानिंग को बता पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट को जो है कभी कभार हमारे को आगे करने के लिए अपनी एक्सपेंसेस पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। उसको लवली, सुधारना लवली। पड़ेगा, कहना पड़ेगा थोड़ी देर सो जा, ताकि जो हम कंसिस्टेंटली सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक सफिशिएंट कॉर्पस बिल्ड हो सके उसके लिए। तो बच्चों को राइट। मतलब हम ऐसे कई छोटी छोटी चीजों से सिखा सकते हैं। Absolutely. This is a great thing you have shared. And even the parents should also learn कि हाँ, जैसे अभिषेक जी ने बोला कि भैया अपने जो एक्सपेंसेस को थोड़ी देर के लिए सुला दो ताकि आप सेविंग्स को हल्का हल्का पुश कर करके इसको आगे बढ़ा पाओ, उसको जिता पाओ।
amazing example and interesting, very interesting. So now comes, अब जैसे हम बात ही बच्चों के ऊपर कर रहे हैं कि हाँ कैसे हम इसको वो कर सकते हैं, तो कैन यू शेयर सर्टेन टिप्स फॉर द पेरेंट्स कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, स्पेशली अगर मैं टीनेजर की बात करूं, बिकॉज दैट इज द So, स्टेज व्हेन चिल्ड्रन आर टोटली ओपन टू मेनी थिंग्स. उनको ये लगता है हाँ हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, हम करियर भी बना लें, हम ये सारी चीजें भी कर लें, एंड दे आर मीन्स इनटू वेरी हॉच पॉच काइंड ऑफ स्टेज. तो आप ऐसे में उनको क्या गाइडेंस दोगे? तो देखो, अब आपने अगर स्पेसिफिकली बात करी टीनेजर्स की, तो सबसे पहले तो हमें बच्चों का एक तो रिलेशनशिप विद मनी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. राइट. सो कई बार क्या होता है, उसकी भी फाउंडेशन होती है. बचपन में जब हम छोटे होते थे तो कोई आता था तो हमारी मम्मी क्या कहती थी, तो पैसे देगा, पैसे मत लेना. राइट. राइट. कहीं ना कहीं, but हाँ, as a child we start thinking, Isha, that it is not a good thing to take money. Money is not good. Then we are told certain stories कि जी इसके पास ज्यादा पैसा है तो इसने तो जरूर गलत तरीके से कमाया होगा. ओके. ठीक है. या बैठे बैठे पैसा आ जाएगा. आ So जाएगा. these are certain things that we should avoid with the kids, and we should give them the right knowledge about how to deal with money. Money is good. You should focus upon happy money, and आपको gratitude के साथ money के साथ deal करना चाहिए. ठीक राइट. है. राइट. Then we must give them some flexibility, like आपको उनको थोड़ा सा मनी के साथ डील करना भी सिखाना चाहिए कि हाउ दे आर गोइंग टू से बजट देयर. आप पॉकेट मनी देते हो तो उसको बजट करना समझाओ, सिखाओ. हाउ यू हैव टू मीट आउट सर्टेन एक्सपेंसेस आउट ऑफ योर बजट ओनली. इफ यू वांट टू डू एक्स and why both, how you are going to plan to save that money for either x or y or for both. ओके. एज सुन मतलब जब आपको लगे कि उनका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है, उनको उनको इंट्रोड्यूस करो इन्वेस्टिंग की तरफ. ठीक है. ऑब्वियसली आप उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत सारी चीजों में, सिंस दे आर माइनर, तो आप नहीं उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, बट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर आल्सो यू कैन डू सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स या सर्टेन थिंग्स. ठीक है ना. उनको बताओ कि क्या सही है, पैसे से कैसे आपको डील करना चाहिए, क्या आपको इन्वेस्ट करना सही है, क्या आपको इन्वेस्ट करना गलत है, कौन से तरीके. यू शुड मेक देम अवेयर अबाउट द गेट रिच क्विक स्कीम्स, आजकल बहुत पॉपुलर है, पर्टिकुलरली 20s के बच्चों में. they have just opened up to the whole world of stock markets, and वो उसमें बहुत रिस्की ट्रेडिंग में घुस गए हैं, many people, and then they eventually burn their money, burn their hands. So you should say give them education कि हाँ what is आपको अपना बेसिक जो फंड, बेसिक जो कोर है उसको प्रोटेक्ट करके थोड़ा बहुत आप मस्ती करते रहो. मस्ती के लिए, फन मनी के लिए, पंगे लेने के लिए उसको अलग करो. ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा आपका पूरा वापस पूरा ही एक ही निकल जाए. बारी में. So we मतलब. have to teach them all these things slowly and steadily, जैसे राइट. उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. ठीक है. इन केस ऑफ इमरजेंसीज, हाउ दे शुड डील विद द मनी. या पेरेंट्स के ऊपर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, हाउ दे हैव टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है राइट. ना. यू शुड हैव अ वेल इन प्लेस फॉर योर किड्स, एंड दे शुड नो वेयर द विल इज लाइंग. राइट. ठीक है. एब्सोल्युटली. So all these are small things that can say impact the financial life of our children. सुपर सुपर. पहले आपने बताया कि जैसे हमको सेविंग्स क्या होता है, बच्चों को सेविंग्स करनी सिखानी चाहिए कि सेविंग आप कैसे करोगे जो आप पॉकेट मनी पेरेंट्स देते हैं उस चीज में, बिकॉज अगर हम अब की भी स्टेज की बात करें तो दीज टीनेजर्स गेट वेरी इजली मीन्स क्या कहते हैं उसको, इनफैक्चुएट टुवर्ड्स द ड्रग्स, टुवर्ड्स द स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों में वो बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो उस चीज का अवेयरनेस देना भी, आई थिंक उस चीज का अवेयरनेस तभी दोगे जब आप उनको मनी सेविंग करना सिखा पाओगे. जब तक नहीं पता तब तक नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर उनको कुछ सुनने में आ जाता है तो देन दे गेट इनटू दैट ट्रैप विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द होल फैमिली, नॉट फॉर द किड बट फॉर द होल फैमिली. तो उस See, चीज के the लिए. other thing that, yeah, हाँ इसके क्या. ऊपर मैं एक और बात बोलूँगा. The other thing that we need to understand is कि आज की डेट में we are moving into the shorter term things. ठीक है. जैसे कि रील्स की, शॉर्ट्स की, I have even made reels on my channel also. So when we अच्छा. make reels,
या कोई भी बंदा रील बनाता है, ही उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। राइट, एब्सोल्युटली। कुछ ना कुछ मिस आउट होगा, आपका केस नहीं होगा, वो एक सिंपल एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से है, तो उसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखिए, ठीक है। बट फाइनेंशियल डिसीजंस आपको हमेशा सोच समझ के, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर बेस बेस आपने पूछा था, तो फाइनेंशियल से आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बेस है, वो है यू मस्ट हैव अ वेल विशर, अ मेंटर, अ कोच हु अंडरस्टैंड फाइनेंसेस, जिसके साथ आप अपने फाइनेंसेस डिस्कस कर सकते हो। तो ये आपकी फैमिली में आपके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर जुड़ा होना चाहिए जो कि वो इज फाइनेंशियली अवेयर, फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट। बहुत लोग राइट, होते हैं who are not competent. Competence comes from two things. One is from your education, one is from your experience. तो दोनों होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिर्फ आपका जो है, आपने आपने एक्सपीरियंस कर लिया लेकिन आपके पास उसकी एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो आप उनको सुन सकते हो, बट यू मस्ट ऑलवेज टेक डिसीजंस और मस्ट इन्वॉल्व द फाइनेंशियल वेल विशर्स हु आर कॉम्पिटेंट इन योर राइट, इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली। दिस इज द बिगेस्ट थिंग यू हैव शेयर, कि अगर आप, और जैसे आप रील्स और शॉर्ट्स की बात करो, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के उस पे बना दी जाती है, कट शॉर्ट करके। एंड एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दोस थिंग्स, एंड हम उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लेने कई बार शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टोटलिटी। और राइट, बहुत सारी तो मैंने रील्स ऐसी भी देखी हैं जहाँ पे पीपल आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ईदर बिकॉज कि वो डेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, किसी भी वजह से चेंज हो गई है, और इवन दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग। राइट, राइट, राइट। सो इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस ऑल्सो, कि अगर आप ऐसी रील्स देखते हो तो एक तो ये देखो कि वो कब, किस टाइम की बनी हुई है, कितने साल पहले की है, और अभी प्रैक्टिकली अप्लाइड है भी कि नहीं। प्लस हाँ, और ट्राई टू अगर टेक द आप उस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को वेट जरूर करो किसी फाइनेंशियल। Yes, right, right, right. Very important thing you have highlighted here. Since we were talking about the teenagers, teenagers क्या ये मतलब right from the middle age में बच्चों को ये सब चीजें inculcate करना शुरू कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में अभिषेक जी ने बताया कि जैसे आपको बच्चों को सेविंग्स मिलती है, या उनको वो मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं रिलेटिव्स के, तो उनके थ्रू कैसे इन्वेस्ट करवाना, मतलब उनके थ्रू ही उनकी सेविंग्स को कैसे करवाना, उनको बता के कि बेटा जब आप बड़े हो जाओगे, वंस यू विल बी गोइंग फॉर द एजुकेशन, दिस विल हेल्प यू देयर। तो एक प्रॉपर चैनलिंग भी हो जाती है बच्चे की, और आप उस चीज को मतलब इन्वेस्टमेंट उस तरीके से कर पाते हो। एंड नाउ द थिंग विच यू शेयर्ड, कि आप रील्स और शॉर्ट्स में ना जाके, मतलब दे शुड बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस विद अप्लाइड थिंग, दैट मेंटोर होना चाहिए आपका। मेंटोर कैन बी योर फ्रेंड, मेंटोर कैन बी योर फैमिली, और फैमिली से बड़ा तो मतलब एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक कि जैसे हम लोगों ने भी अपने इंडियन फैमिलीज में देखा है कि कितने तो लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में भी मार खा जाते हैं, तो फाइनेंशियली दैट इज व्हाई आई सेड कि आपके पास कॉम्पिटेंस दो तरीके की होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस एक होना प्रैक्टिकल चाहिए। भी राइट, और एक आपके पास एजुकेशनल भी। फाइनेंशियल, राइट, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, यू मस्ट राइट, हैव दैट काइंड ऑफ से क्वालिफिकेशन आल्सो, कि आप राइट, उन चीजों राइट। को। एब्सोल्युटली। आई हैव सीन दिस थिंग इन माय फैमिली आल्सो, मींस अपने रिलेटिव्स में भी देखा है कि अच्छे खासे बिजनेस चलते 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 कहीं ना कहीं पे स्टॉपेज आई है, फिर उसके बाद बढ़ा है, कभी लोन लिया है, कभी इसको चुकाना, फिर वो करना, फिर बच्चों की शादी, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टर्म फॉर द पेरेंट्स टू गेट आउट ऑफ दैट डेट। So that is also हाँ, learning for them also, and plus they can pass on this to their kids also, कि हाँ हमने ये किया, आप मत करो। मीन्स इट्स रियली हार्ट टचिंग थिंग्स, बट यस, उस एक्सपीरियंस से आई थिंक जैसे आपने बहुत अच्छे, और उस टाइम पे ये कहा जाता था कि हाँ बेटा आप ये इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आपका बिजनेस अच्छे से चल जाएगा। वो तो एक होगी एजुकेशनल नॉलेज, फाइन। बट उसके आगे जब अब तक आपने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा, तो आपको वो कॉम्पिटेंसी भी नहीं आएगी। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग विच यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस ऑल्सो, कि ये दोनों एब्सोल्युटली। चीजें जब होगी तभी आप आगे बच्चों को इस तरीके से गाइडेंस दे पाओगे, अदरवाइज दे विल ऑल्सो गेट लॉस्ट यू एंड यू विल मस्ट गेट पनिश्ड। इन्वॉल्व, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू मस्ट, आपको खुद भी पता होना चाहिए, बट यू मस्ट आल्सो इन्वॉल्व अनदर पर्सन in your financial decisions, some राइट, consultant, advisor, जिसको राइट, आप वेल विशर, जिसको आपका पता हो, जो who is financially say educationally, who has that kind of financial education. राइट, राइट, राइट। फाइनेंशियल एजुकेशन भी हो, प्लस आप अपना मतलब जैसे और डिटेल में आप expertise. अपना, राइट, एक्सपर्टीज भी हो,
कि आप अपना हर चीज इनके साथ डिस्क्लोज कर सको विद ट्रस्ट, कि हाँ वो आपको बता पाए कि हाँ अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप इसको ऐसे इन्वेस्ट कीजिए, आपको आगे जाके बच्चे के लिए ये मिलेगा, या ऐसा होगा, या फैमिली के लिए होगा, या अपना इंश्योरेंस वगैरह जो भी। तो दैट थिंग इज देयर, एंड फॉर दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, तो वो मैं जरूर करूंगी आपसे डिस्कस। बाकी इट्स रियली अ ग्रेट थिंग विच यू हैव शेयर्ड अबाउट आवर ऑडियंस ऑल्सो, टू आवर ऑडियंस ऑल्सो, कि हाँ हमको मेंटोर वैसा भी चाहिए, प्लस आपको एक गाइडलाइन देने वाला भी एडवाइजर चाहिए जो आपको प्रॉपर एक करेक्ट पाथ पे ले चले। तो अभी एज वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस, इस पूरे टॉक शो का आई वुड लाइक यू टू गिव अ स्मॉल क्रक्स इन 3 takeaways what you want our audience to take from you. So जो मैंने अभी सबसे लास्ट में डिस्कस किया है, you must have a financial coach, mentor or well-wisher with you who is competent both in terms of education and experience. You must involve them so that they can give you a third person view or maybe unbiased advice on your finances. The other thing is that you must learn about you must be financially literate also yourself, because then you can take better decisions and you can give a better understanding, or you can discuss properly with your financial advisors or say mentors. The other thing is that every person must learn. You must learn, your spouse must learn about, your spouse should also be financially literate. अब बहुत सारे घर में क्या होता है, women को नहीं होता, तो पता नहीं होता, तो women should also be financially literate. ठीक है ना? And the third thing is कि you should also teach this financial literacy to your kids. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, एज आई मतलब हमने जो सारी चीजें डिस्कस करी हैं, आई हैव कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ देम से उसका उसका जो एसेंस है, आई हैव कैप्चर्ड इट इन माय बुक व्हिच इज नेविगेट फाइनेंशियल वेलनेस से Wow. आगे। Lovely. हाँ, Yes, बस nice. ये Yeah, yeah. just You can get it on Amazon, and it will say help you develop the basis of financial literacy, और बहुत सारी चीजें आपको वेलनेस के लिए, फाइनेंशियल वेलनेस के लिए मोटिवेशन मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग आएगी। एंड आई मस्ट से दैट आई कैन से दैट दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक, lovely, lovely. वन ऑफ द That's बेस्ट great. इन्वेस्टमेंट। That's great. Yes, great. Firstly, congratulations for the book which you have written. थैंक यू। And please do share the link with me also. I'll post it with this video to श्योर everyone. श्योर। And I hope this, मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे यही होने वाला था कि आपने फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी कि सबको पता होना चाहिए, तो इसकी कोई स्ट्रैटेजी है कि कहाँ से पता चलेगा? तो यू हैव गिवन सच अ ग्रेट तो आंसर इसमें ऑन जैसे मैंने बहुत सारी बातें आपसे करी, ये टोटाइस वाली स्टोरी या और भी कई चीजें, तो वो इसमें आई हैव कैप्चर्ड दैट बिकॉज़ आई हैव सीन मेनी सच थिंग्स इन लाइफ। सो प्रैक्टिकली भी मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, एजुकेशनली भी बहुत सारी चीजें समझी हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव poured into this book. Wow, that's wonderful, and that is going to be a practical knowledge for everyone, everyone. Right. So thank you so much for coming and giving such an insightful things on this, how to manage our finances. And it's a great pleasure for me to have you on the stage today. और ये वीडियो भी आई एम गोइंग टू पोस्ट इट एवरीवेयर, मीन्स इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, एंड अभिषेक जी को आई एम गोइंग टू टैग। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो फाइनेंशियली रिलेटेड, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम, ही विल बी मोर ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, इनकी बुक जरूर ले लेना, उससे आपको बहुत ज्यादा ही चीजें मिलेंगी, मतलब सीखने को। राइट, तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर कमिंग। Thank you, Priti, for having me today on your show, and I really enjoyed this interaction with you. And all the best to your audience. And I wish them financial success and financial success. थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। Thank you.